Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to start our new topic which is based on non-finites. Let's begin. Are you ready? Very good. Some verbs changes their forms when used with different subjects and when used in different tenses. For example, I wear a shirt. He wore a shirt. You have worn a shirt. She wears a shirt. They are wearing a shirt. We were wearing a shirt. So यहाँ पर बताया गया बच्चे वर्ब चेंजेस देयर फॉर्म. ओके, वर्ब जो है वो अपने फॉर्म को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनको यूज किया जाता है डिफरेंट टेंसेस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शो भी किया गया है. आपने देखा आई के साथ ओनली वियर, लेकिन शी के साथ आपने देखा वियर्स. ओके, देन ही के साथ वॉर और वहां पे आप देख रहे हो दे के साथ लगा है आर वियरिंग. सो हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज हो रही है और सेंटेंस का कंप्लीटली मीनिंग भी चेंज हो रहा है. द वर्ब विच चेंजेस विद अ चेंज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट that it is limited by a number and person of the subject is called the finite verb. On the contrary, some verbs do not change their form even when there is a change in number and person of the subject. For example, बहुत सारी इस तरह से verbs होती है बच्चे जो कभी चेंज होती ही नहीं है, चाहे उनका सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या फिर प्लूरल में हो. नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, पर्सन का मेन सब्जेक्ट्स के साथ मेन सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है वो सिंगुलर है प्लूरल doesn't matter. Like I wear a shirt to study. She wore a shirt to study. You have worn a shirt to study. He wore a shirt to study. They are wearing a shirt to study. We were wearing a shirt to study. तो आपने देखा सभी के साथ to study का यूज किया गया है, वहां पर नहीं चेंज हुआ है कुछ भी. Here you can see that the verb to study does not change even when there is a change in the number and person of the subject. That is, it is not limited by the number and person of the subject. So it is called the non-finite verb. You have studied different forms of the finite verb earlier in the book, such as transitive verb, intransitive verb, linking verb, etc. Now we shall learn the non-finites. Types of non-finites का पढ़ने वाले हैं बच्चे कि कितनी तरह की होती है non-finites verb, कितनी तरह की होती है. There are 3 types of non-finite verb. First one is infinite. Second, we can call it gerund, and third is participle. So first, we will start from infinitive verb. The infinitive verb is the base form of a verb. Base form बोला जाता है बच्चे इसको. It functions like a verb and noun in a sentence. So it is also called the verbal noun. And infinitive is to plus verb. Means verb यहाँ पर बच्चे first form use होगी. Okay? जैसे आपने देखा था to study. Study क्या है? First to ask, to tell, to give. इस तरह से फर्स्ट फॉर्म ही यूज होने वाली है. However, in certain cases, to is omitted. यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स. ये इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? सो वी कैन यूज इन्फिनेटिव इन सेवरल वेज. फर्स्ट यूज हेयर वी कैन यूज एज इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं. लाइक टू वेस्ट योर टाइम इज सिली. To succeed needs hard work. To practice is to become perfect. To play is good for health. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट इन्फिनेटिव को. सेकेंड वन इज वी कैन यूज द इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स लाइक टू डांस. द ट्यूटर हैज स्टार्टेड टू टीच मैथमेटिक्स. द मिनिस्टर हैज कम टू एग्जामाइन द हॉस्पिटल. द टीचर हैज आस्क्ड हिम टू टेल द ट्रुथ. सो यहाँ पर ब्लू कलर में बच्चे आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट. एज अ ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है. थर्ड पॉइंट इज हियर वी कैन यूज द इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब. लाइक टू सेव इज टू अर्न. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है बच्चे. कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्ब का कॉम्प्लीमेंट दिखाया जा रहा है. सेव करना है, अर्न करना है. ओके, टू सेव तो उसके लिए हमें अर्न करना पड़ेगा ना. सेव कहाँ से करेंगे? पहले तो हमें अर्न करेंगे, देन वी कैन save them. To think is to become wiser. To play is to enjoy. It is good for you to work hard. Fourth point is here, we can use the infinitive as a object to a preposition. Okay, preposition के base पर like the train is about to depart. Rain is about to start. Next is we can use the infinitive
as case in apposition with it as the subject. First is example here बच्चे, it is silly to put hot food in the fridge. It is a good idea to start early. Next, with some verbs. Verbs के साथ भी यूज किया जाता है infinitive का. To is not used with the infinitive. For example, feel, hear, see, let, have, make, notice, watch, bid, dare, need. For example, I can see someone knock at the door. She lets her husband stay out at night. They felt the door vibrate. The people noticed the thief steal a purse. Next point is here, some verbs, necessity. Okay, necessity base पर बच्चे compulsion के base पर take to with the infinitive का use किया जाता है. Example के लिए advise, allow, ask, beg, cause, command, compel, enable, expect, get, imagine, induce, instruct, like, order, permit, pursued, require, tell, want, wish. For example, the watchman allowed him to go in. The officer caused the work to be done. The doctor advised him to take medicine on time. The teacher asked the students to work hard. Next point है, you may or may not use to with two verbs. उनके साथ यूज नहीं करना. Like no and help के साथ. I have known it to rain in summer. Help me to cross over the road. The teacher helped him to understand the formula. तो आपने याद रखना है बच्चे, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता. ओके, तो उस बेस पर नो एंड हेल्प का ध्यान रखेंगे. लैंग्वेज पावर के अंदर स्टूडेंट्स दिया गया है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, must, ये सभी क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब है. ओके, देन आपको याद रखना है इनके साथ आपने इज कॉल्ड द इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है इसके बाद. ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद. लाइक इनको इन्फिनिटिव बोला जाता है. लाइक आई कैन स्विम, तो आपने देखा कैन को पहले यूज किया गया है. कैन क्या है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब है. स्विम क्या है, मेन वर्ब है. तो मेन वर्ब से पहले, एक्शन वर्ब से पहले हमने किसका यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का. डू, गो, नाउ, तो गो से पहले डू का यूज किया. मे आई कम इन सर, आई मस्ट ईट हॉट फूड. ओके, सो इस तरह से हमने यूज किया है सभी हेल्पिंग वर्ब का. ओके, प्रैक्टिस ड्रिल जो भी हमने पढ़ा है बच्चे उसके बेस पर ही यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने खुद से करनी है. सेकंड पॉइंट हमारा आता है बच्चे जीरेंड के बेस पर. ओके, when we add ing to a verb, it becomes either the present participle form or the gerund. जब हम अपनी मेन वर्ब में बच्चे, मेन वर्ब होती है जो एक्शन वर्ब होता है. ओके, उठना, सोना, बैठना, सुनना. ओके, लाइक दिस, लिसन, टेल, सिट, लाइक दिस. मेन वर्ब के साथ हम ing का यूज करते हैं, देन वी कैन कॉल इट प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड हम उसको बोला जाता है. द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है. लाइक व्हाइल द जीरेंड इज यूज्ड एज अ नाउन की तरह हम कैसे यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड कॉल्ड द वर्बल नाउन, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं. अब जो जीरेंड है बच्चे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज. किस तरह से यूज होता है यहाँ एक एक पॉइंट के अंदर डिस्कस किया गया है. फर्स्ट पॉइंट इज हियर, वी कैन यूज द जीरेंड एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब. ओके, एज सब्जेक्ट टू अ वर्ब यूज किया गया है. लाइक वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. देन आप देख रहे हो वॉकिंग, वॉक करना तो एक्शन हो गया, ये तो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जीरेंड यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट के रूप में. ओके, एज अ सब्जेक्ट फेस में यूज किया गया है. लाइक वॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, ing लगाकर जीरेंड बन गया वो. वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. स्पीकिंग पोलाइटली इज गुड मैनर्स. रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ट्राइंग मीन्स विनिंग. Second point, we can use the gerund as object to a verb. अब यहाँ पर जो यूज किए गए हैं बच्चे ब्लू में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये gerund यूज किए गए हैं एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म में. She loves singing. The woman started grinding wheat. Trying means winning. You enjoy watching films. थर्ड पॉइंट बच्चे, we can use the gerund as complement to verb. कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है. Like the examinee's fault was coping. His hobby is playing flute. Working hard is succeeding. There is much talking in the class. We can use the gerund as object to a preposition के रूप में यूज किया जाता है. Like we cannot live without eating. She was called for seeing me. She is fond of running.
हाउ अबाउट डांसिंग हेयर? फिफ्थ पॉइंट, gerund कैन बी यूज्ड इन with introductory it and they के साथ यूज किया जाता है like it is nice meeting you, there is so much talking in the class. तो यहाँ पर आपने देखा बच्चे इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्टरी के लिए इट और देयर के साथ में टॉकिंग एंड मीटिंग का यूज किया गया है. इंटरचेंज ऑफ इन्फिनेटिव्स एंड जिरेंट्स, किस तरह से इनको इंटरचेंज किया जा सकता है? लाइक समटाइम्स इन्फिनेटिव एंड जिरेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए भी यूज हो जाते हैं. लाइक हम देख रहे हैं टू ट्राई इज टू विन, इन्फिनेटिव ट्राइंग इज विनिंग, तो जिरेंट के रूप में इसको यूज किया गया है. टू रन इज अ गुड वे टू कीप फिट, रनिंग इज अ गुड वे ऑफ कीपिंग फिट. तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जिरेंट का यूज किया गया है डिफरेंट वे में समझते हुए. तो ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इनसे रिलेट करती हुई ये कंप्लीट करनी है आपने खुद से. यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज का पोर्शन है बच्चे, उसको कंप्लीट करना नहीं भूलना है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड मेन पार्टिसिपल के बारे में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट्स, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल्स एंड थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट शोज कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. कभी भी कंटिन्यूटी की बात आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज किया जाता है. V1 के साथ ing का इसमें यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, एक्शन को दिखाने के लिए. इट इज मेड बाय एडिंग ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अभी मैंने जिसकी बात की गई है इसमें ing को ऐड किया जाता है मेन वर्ब में. लाइक फ्लाई, तो फ्लाइंग बनाएंगे उसको. ओके, लाइक रन, तो रनिंग करेंगे. लिसन, ing ऐड करेंगे लिसनिंग. कैरी, कैरिंग. ओके, द फ्लाइंग काइट सडनली डिसअपियर्ड, ही वेंट टू स्कूल रनिंग. लिसनिंग टू द न्यूज, द गर्ल्स सैट डाउन sorrowfully. We saw a farmer carrying a basket on the hat. Past participle. It shows the work has finished. ये क्या शो करता है कि काम खत्म हो चुका है. Has finished. It is the third form of verb का यूज किया जाता है past participle में स्टूडेंट्स. The broken glass was thrown away. जो टूटा हुआ ग्लास है उसको फेंक दिया गया है. ओके, सो वो काम डन है, फिनिश्ड है, फेंक दिया गया. Welcomed by the people, the minister waved his hands. The burnt child was treated by a doctor. Wounded in the accident, the victim was taken to hospital. Perfect participle. It shows the beginning of an action after the first one has finished. Okay, पहला वाला एक्शन खत्म हो चुका है, दूसरा एक्शन beginning को शो करता है ये. It is made by having plus verb third form. Like having finished his work, he danced for some time. काम खत्म करने के बाद उसने क्या किया? He danced for some time. कुछ टाइम तक डांस किया. में से एक काम खत्म, बिल्कुल डन हो चुका है. ओके, देन उसने नया काम शुरू किया है. Having passed in the first division, the girl have a party. Having spoken to the officer, the applicant went away. Having done my homework, I went for a walk. Joining sentence using participles. बच्चे ज्वाइनिंग करके, ठीक है, किस तरह से ज्वाइन करेंगे? We can use participles to join sentence like you sang a song, you went out. Having sung a song, you went out. 2 sentences है स्टूडेंट्स, पहले ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर. 2 sentences है डिफरेंट. You sang a song, you went out. लेकिन हमने उसको participles का यूज करके ज्वाइन कर दिया है. Like having sung a song, you went out. The players advanced. They were taking the ball with them. Taking the ball with them, the players advanced. I threw away the chair was broken. I threw away the broken chair. Complete sentence किया है, उसको join किया बच्चे. She saw the river, she stopped. Seeing the river, she stopped. She withdrew a book from the library, she began to read it. Withdrawing a book from the library, she began to read it. The turban was on his head, he ran swiftly. Turban being on his head, he ran swiftly. The tiger chased the lamb scampered away. Chased by the tiger, the lamb scampered away. Okay? So ये है एक्सरसाइज बच्चे, रिलेट करती हुई जो आपने पढ़ा है, रीड आउट किया है कंप्लीट चैप्टर के अंदर, होल चैप्टर के अंदर इसको दोबारा से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको करना नहीं भूलना स्टूडेंट्स. तो अच्छे से उनको कंप्लीट करेंगे, थोरोली यूज करते हुए अच्छे से, है ना, यूसेज को भी नहीं भूलना है.
तो उसको वर्बली भी आपको यूज करना है, घर में बोल बोल कर यूज करना है, क्लासेस के अंदर बोल के यूज करना है, तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर पाएंगे।